So in the last class, I started proof of this Pnx, which is equal to 1 by 2 to the power n factorial n nth derivative of x square minus 1 to the power n, which is called Rodrigues formula. So to prove it, we need this differentiation rule. Okay, uh, dx to the power n, dn dx to the power n x to the power m. If m is equal to n, then it is n factorial. If m is less than 0, then it is 0. And if m is greater than n, then it is factorial m divided by m minus n factorial into x to the power m minus n. Actually, we need the third part whenever m is greater than n. Okay. So I'm opening another new. Okay, again I'm writing. We have to show that Pnx is equal to 1 by 2 to the power n into n factorial dn dxn into x square minus 1 to the power n. ये है ना? Let me check once. 1 by 2 to the power n into factorial n, nth derivative of x square minus 1 to the power n. Okay. Now we will show that RHS is equal to Pnx. So 1 by 2 to the power n into n factorial which is equal to uh, 1 by 2 to the power n into factorial n uh, nth derivative of I have expanded this x square minus 1 to the power n. It is what? Factorial n factorial m n minus m factorial, then x squared to the power n minus m into minus 1 to the power m. यही था ना after expand. Okay, there I have a summation. Binomial expansion in m Yes, sir. to 0 to n. देखो यहाँ तक तो मैं बताया था लास्ट क्लास में. Are you getting or still having any question? Tell me. No, sir. Doing, sir. Yes, sir, we are doing. Again, I am writing that summation m0 to infinity, sorry, n minus 1 to the power m factorial n divided by m factorial n minus m factorial x to the power
2n minus 2m. नाउ जो nth डेरिवेटिव वाला वो प्रॉपर्टी मैंने बताया, nth डेरिवेटिव ऑफ x to the power m, वो वाला भी यूज करेंगे. तो वन थिंग यू सी, okay, leave it, I am doing 2 to the power n into factorial n, then second bracket, under the summation I can write the differentiation. बेसिकली डेरिवेटिव किसका होगा? x to the power 2n minus 2m का. अदर्स तो सब कांस्टेंट है ना. Yes, sir. कैन आई राइट दिस? ये डेरिवेटिव को समेशन के अंदर में लिख सकता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. It is the linearity property of that derivative. Okay, मतलब ये प्रॉपर्टी पता है ना, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स. तो आई कैन राइट डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स. Yes. So by using that property, मतलब ये समेशन के अंदर हो जाता है. Okay, तो now you think nth derivative of x to the power 2n minus 2m, m जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? जीरो से, राइट. समेशन में m स्टार्ट होता है जीरो से, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? डी nth डेरिवेटिव ऑफ x to the power 2n. मतलब क्या है? ये जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका पावर जो है वो n से बड़ा है. मतलब वो nth डेरिवेटिव ऑफ x to the power m where m greater than n, ये वाला केस ना. यहाँ पे nth डेरिवेटिव ऑफ x to the power 2n minus 2m क्या होगा? Can you tell me according to that formula? ये जो मैं फॉर्मूला लिखा था, this m की जगह पे सोचो 2n minus 2m, देन ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? बोलो. नो वन इज एक्टिव नाउ. Sir, no, sir. Everyone is active, sir. एक्टिव. Yes, sir. Yes, sir. ओके. So we are just listening to the theorem and we are also writing in the copy. No, that's right. Yes, sir. Writing. ओह इट्स वेरी गुड. तो मैं अलग से ये दिखाता हूँ पहले. देखो डी, अब मैं पहले वो थ्योरम लिखता हूँ, मतलब वो रिजल्ट लिखता हूँ. डी डी एक्स nth डेरिवेटिव ऑफ x to the power m, ये क्या था रिजल्ट? m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल n माइनस m और m माइनस n.
m minus n. x to the power n minus n, right? When m is greater than n. Now अगर ऐसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? सो ये 2n माइनस 2m फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर में. नीचे क्या लिखूंगा? m, जस्ट m की जगह पे तुमको पुट करना है 2n माइनस 2m. ठीक है, जहां जहां Yes. पे ऊपर वाला फॉर्मूला में m है, ये m की जगह पे पुट करना है 2n माइनस 2m. तो नीचे क्या होगा बोलो? n minus 2m. n माइनस 2m. 2m फैक्टोरियल एंड x टू द पावर. Yes. सॉरी, ये n माइनस m या m माइनस n? फॉर्मूला पहले से इसे लिखना पड़ेगा. m माइनस n था ये. तो ये क्या हो जाएगा? n minus 2m. देखो ये सही है. Yes, sir. तो अभी इसको पुट कर देते हैं. ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव की जगह पे मैं ये इसको पुट करने वाला हूँ. तो इट इज 1 by 2 to the power n into factorial n summation minus 1 to the power m factorial n factorial m factorial n minus m देन ये इन डेरिवेटिव का रिप्लेस कर रहा हूँ. ये होगा. एंड समेशन का लिमिट क्या ये सेम टू सेम रहेगा? m इज इक्वल टू 0 टू n. m 0 से स्टार्ट होगा. अपर लिमिट क्या होगा? एनीबॉडी गेस? n ही रहेगा. देखो ये फॉर्मूला एक्चुअली मैंने जो लिखा वो कब तक एप्लीकेबल है? जब तक ये जिसका डेरिवेटिव हो रहा है इसका पावर n से बड़ा हो, राइट? Yes, sir. ये Yes, sir. पावर Yes, sir. जो है वो जब तक n से बड़ा है तब तक वो फॉर्मूला मैंने जो लिखा वो एप्लीकेबल. तो ये बोलो कि ऑलवेज क्या ये n से बड़ा होगा या आफ्टर सम सर्टेन वैल्यू ये मतलब n से छोटा हो जाएगा? m का वैल्यू क्या हो सकता है? m का वैल्यू अगर मैं n बाई 2 ले लेता हूं तो वैल्यू क्या होगा? इक्वल n बाई 2 मतलब 2n, ये n बाई 2, सो 2n माइनस n x टू द पावर n. तो n बाई 2 पे आके ये इक्वल हो जा रहा है, मतलब n, ये n डेरिवेटिव एंड पावर भी n. एंड अगर n बाई 2 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? लाइक यू थिंक अबाउट n बाई 2 प्लस 1. क्या पावर n से छोटा हो जाएगा?
if m is equal to n by 2 plus 1? Tell me. Simple. कैलकुलेट करना पड़ेगा छोटा हो जाएगा 2n minus 2 into n by 2 plus 1. ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ. यस Just a power. So 2n minus n minus 0 therefore it will be n minus 2. So it is we are getting less than n ना. यस yes Now if you think अगर n by 2 plus 2 होगा तो भी और छोटा हो जाएगा. So what happened in that case? nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. मतलब n by 2 से जब भी बड़ा हो जाएगा m का वैल्यू तब से सभी वैल्यू 0 हो जाएगा. मतलब n by 2 से n तक, n by 2 के बाद जितना भी m का वैल्यूज है वो सब वैल्यूज के लिए ये डेरिवेटिव 0 है. तो ये नॉन जीरो वैल्यू कब तक मिलेगा? n by 2 तक. yes sir Are you getting my point? yes sir यस सर yes sir एक्चुअली ये बॉक्स हो जाएगा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि n इवन और ऑड आई डोंट नो. तो अगर ऑड होगा तो नियरेस्ट इंटीजर होगा. तो इसीलिए box of n by 2. Fine. यस सर And which is capital M actually in the Pn formula, which is capital M. Now you can see Pn formula. Pn formula याद है किसी को? मतलब Pnx का जो सीरीज मैंने याद रखने के लिए बोला था. दिस क्या एग्जैक्टली यही आया है वहां पे? एग्जैक्टली यही अभी नहीं है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. ये दोनों कट जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद I can write m0 to infinity minus 1 to the power m into 2n minus 2m factorial divided by 2 to the power n into m factorial. ये 2 to the power n को समेशन के अंदर ला सकते हैं क्योंकि it is independent of m. n minus m factorial n sorry ये infinite नहीं n minus 2m factorial x to the power n minus 2m. A box of n by 2. तो अभी देखो बराबर आया है pnx का सीरीज. यस सर यस देखो सर m0 to m minus 1 to the power m 2n minus 2m factorial divided by जो भी है सब एकदम बराबर आ गया है. यस सर So you can write it which is equals to pnx. So that is the proof. Sorry, L is this था. Any doubt? नो सर no sir Okay. Now see some more problems. Okay, ये generating function for Legendre's polynomial. It is also an important problem. Generating function. And the generating function for Legendre's polynomial, it is this. ये इसका भी proof आ सकता है कि so that the generating function for Legendre's polynomial is equals to 1 by root under 1 minus 2xu plus u square. So I will show you this proof
later. Before that, I want to show some easier problem. तो ये वाला 12 कर लिए हैं. Now we will see bonnet recursion. जो क्या क्या करेंगे मैं ये थोड़ा मार्क कर देता हूँ. बोनेट रिकर्शन करेंगे. देन ये जो सी पार्ट का प्रॉब्लम ये करेंगे. ये कौन सा सी है? 10 सी. ओके, ये 10 सी करेंगे एंड ये 10 ए करेंगे. ये करने से हो जाएगा एग्जाम के लिए. सॉरी, ये 11 भी दिखा देंगे थोड़ा सा. Sir, 10A, C and 11, 12. 10 ए, 10 सी, 11, 12. Okay. And here problem number 14. Okay. Yes, sir. Now let us see the proof of this bonnet recursion. तो bonnet recursion के लिए actually we have to use generating function. तो generating function का definition क्या है ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा. उसके बाद मैं generating function यूज करूँगा. तो देखो ज़्यादा डीपली सोचना नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, क्योंकि generating function का definition पूछेगा नहीं. तो जनरेटिंग फंक्शन किसके करस्पॉन्डिंग होता है, ये पहला क्वेश्चन है. सो जनरेटिंग फंक्शन फॉर ए सीक्वेंस. तो जनरेटिंग फंक्शन फॉर ए सीक्वेंस आई एम जस्ट शोइंग इन ब्रीफ. अगर समझ में आया भी तो ठीक है, नहीं तो चलेगा. Let's take a series. In the second bracket an I am writing an. So in the second bracket ANN, that notation means it is a sequence. Now sequence means a set of some numbers or some elements: A0, A1, A2, A3, A4, A5 and so on. Okay, तो ये एक सीक्वेंस है. जैसे सेकेंड ब्रैकेट में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखेंगे, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स. अगर ए एन इज इक्वल टू 1 बाई एन ले लेते हैं, देन इट इज मीन्स नॉट ए एन इज इक्वल टू 1 बाई एन, इट इज 1 बाई एन प्लस 1. देन इफ यू पुट 0, देन इट इज 1, देन 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4 एंड सो ऑन. इट इज a sequence. So sequence means a set of numbers. Okay, set of numbers or set of elements. तो इतना सही समझ लो. सीक्वेंस पढ़े हो तुम लोग पहले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. AGP, AGP, HP. Those are also some kind of sequence. तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? सो जनरेटिंग फंक्शन of the above sequence. It is basically the series A0. Okay, I'm writing. मतलब पहला टर्म को 1 देके मल्टीप्लाई करेंगे, सो A0, देन प्लस सेकेंड टर्म को x से A1x, थर्ड टर्म को x स्क्वायर से A2x स्क्वायर एंड सो ऑन, A3x क्यूब, A4x टू द पावर 4. सो ये जो सीरीज है, ये सीरीज ही होता है जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीक्वेंस. ओके, मतलब
दिस वन। एक्चुअली ये सीरीज का करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली फंक्शन क्या है वो अगर हम लोग को पता चल गया तो वो एकदम क्लोज्ड फॉर्म में जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। दैट इज अ क्लोज्ड फॉर्म ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन, बट यूजुअली जनरेटिंग फंक्शन मीन्स ये जो सीरीज है, सीक्वेंस ऐसे सीरीज लिखना है एंड वो सीरीज ही होता है जनरेटिंग फंक्शन। फाइन, आई एम गिविंग यू a simple example. So if I take the sequence an where an is equal to 1 by factorial n, okay, n is equal to 1 by factorial n, and here n is starting from 0, n को 0 से start कर रहे हैं हम लोग always. Now tell me what are the elements of this sequence? At least you tell me 5 or 6 elements, first elements. क्या होगा? n 0 पुट करेंगे तो 1 n 1 पुट करेंगे तो 1 by factorial 1, that is also 1 1. by 1 Then a 1 by 2 factorial, then 1 by 3 factorial, then 1 by 4 factorial, and so on. Okay, so it is the sequence. Now if I ask what is the generating function for this sequence, what you will do? You will construct the power series in the previous form. So first term as it is, मतलब उसको 1 से मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म को क्या x से मल्टीप्लाई, तो x बाई फैक्टोरियल 1, थर्ड टर्म को एक्स स्क्वायर से, देन एक्स क्यूब से, एंड सो ऑन. So this power series is a function for this sequence. Okay. Now, do you know what is the closed form of this series? The closed form of this series, it is e to the power x. ये e to the power x का series है. It is the closed form of this series. So therefore ये जो above sequence मैंने लिखा है इसका generating function क्या है? That is e to the power x. मतलब e to the power x ये sequence का elements को generate करता है, इसीलिए इसको generating function बोला जाता है. Is that clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us come to the point generating function for the Legendre's polynomials. तो मतलब यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो है पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स, पी थ्री एक्स, एंड सो ऑन. अब ये जो सीक्वेंस है दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स, राइट. मतलब जितना भी लीजेंडरीज पॉलिनोमियल है एक एक करके मैंने लिस्ट कर दिया. दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ लीजेंडरीज पॉलिनोमियल. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ legendary polynomials, so it is an infinite sequence. Now previously I have shown for constant, मतलब sequence का element constant, but a sequence can be but elements of sequence can be any function also. Okay, so it is our sequence of legendary polynomials. Then what will be the generating function for it? यही है यहाँ पे मतलब दिखाया गया है कि वो हो जाएगा इस फंक्शन, मतलब दैट इज अ क्लोज्ड फॉर्म. ओके, क्लोज्ड फॉर्म ऑफ द फंक्शन. नाउ इट इज बेसिकली क्या है, इसको डिनोट करेंगे ऐसे g x u. अब ये u मतलब जो
प्रीवियसली यहाँ पे जैसे x लिख रहे थे, वो x यहाँ पे मैं u ले रहा हूँ. गॉट दिस? बिकॉज एलिमेंट्स x से रिलेटेड है, तो और मैं दोबारा x नहीं लिख सकता. तो इसीलिए प्रीवियसली जो सीरीज जैसे कंस्ट्रक्ट किए थे, हियर दैट x that is u here, then what will be the series? Tell me. P naught x plus p1 x into what? U. p2 x into u square, p3 x into u cube, and so on. Are you getting this? ये जस्ट प्रीवियस से कंपेयर करो, 1 बाय फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल 2, ये सब जगह पे जस्ट p नॉट p1 p2 p3 p4, एंड ये जो x यहाँ पे लिया था वो x, क्योंकि सीक्वेंस में x वाला फंक्शन है, तो वो वाला x और मैं यहाँ पे सीरीज में यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे u यूज कर रहा हूँ. इंस्टेड x आई एम यूजिंग u. फाइन. एंड overall it will be a function of x and u, na? That is why I have written x comma u. And in summation form you can write like p n x u to the power n is equal to 0 to infinity, this series. So it is the generating function for Legendre's polynomial. Now it is not the closed form, it is a series form. Now ये देखा गया है कि इसका जो क्लोज्ड फॉर्म होता है ऑफ दिस समेशन, वो होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस 2xu प्लस u स्क्वायर. तो ये कैसे हुआ है इसका प्रूफ मैं दिखाऊंगा बाद में. मतलब ये सीरीज इक्वल्स टू ये फंक्शन कैसे लिख रहा हूं. बट यहां से ये क्लियर हुआ है ना कि ये फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन मीन्स क्या है. ये फंक्शन अबव सीक्वेंस को जनरेट करता है. मतलब ये फंक्शन को अगर एज ए सीरीज लिखेंगे तो वी विल गेट दिस all of these Legendre's polynomials. Okay, is it means? चलो लास्ट में क्या हुआ? हाँ, चलो लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में क्या हुआ यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो सीरीज है, जो the series I have written in 0 to infinity p n x u to the power n, that series is actually the function 1 by root under 1 minus 2xu plus u square. And I told that I will see it later. I will show it later कि ये कैसे आया, वो सीरीज से ये फंक्शन में कैसे लिखा. I will show it later. इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में. एक्चुअली ये थोड़ा लेंथी है, इसीलिए अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ. So for now, if someone asks what is the generating function for Legendre's polynomial, मैं ये वाला फंक्शन बताऊंगा, 1 by root under 1 minus 2xu plus u square. Okay. Yes, now sir. let us use the generating function to solve other problems. So we can solve now generating, sorry, Bonnet's recursion. At Bonnet's recursion by using generating function. तो देखो मैं बोनेट रिकर्सन प्रूव करने के लिए कैसे जनरेटिंग फंक्शन को यूज कर रहा हूं. So it is the Bonnet recursion formula. I hope all of you know what is meant by recursion formula. Whenever actually to find the current value, we need the
we need some previous values, then the relation among current value to previous values, that is called recursion formula, right? देखो यहाँ पे pn plus 1x निकालने के लिए pnx and pn minus 1x यूज हुआ है, so that is why it is recursion formula. Previously also ना वो recursion formula और recurrence formula में लिखा था in the solution of power series method. ये जो है मान लो कि जनरल टर्म कोएफिशिएंट इक्वेट करके ऐसे एक रिलेशन आता है, इट इज recursion formula और recurrence formula. I told ना why, because देखो as plus 2 यूज करने के मतलब निकालने के लिए as यूज करना पड़ रहा है, मतलब टू फाइंड ए वैल्यू आई एम यूजिंग द प्रीवियस वैल्यू और प्रीवियस वैल्यूज, दैट इज व्हाई ये रिकर्शन फॉर्मूला है. तो सिमिलरली वो बोनेट रिकर्शन फॉर्मूला भी ऐसा है कि कोई n प्लस 1th डिग्री लीजेंड्रेज पॉलिनोमियल निकालने के लिए n प्लस 1th डिग्री लीजेंड्रेज पॉलिनोमियल निकालने के लिए we can use nth degree legendary polynomial and n minus 1th degree legendary polynomial. Okay, so ये relation है, relation is that n plus 1 into pn plus 1 x which is equals to 2n plus 1 into x pnx minus n into pn minus 1 x. Now how to prove it? So to prove it, we are considering the generating function gux which is equals to 1 by root under 1 minus 2xu plus u square. मैं अभी बताया थोड़ा देर पहले कि it is the generating function for Legendre's polynomial, right? And in terms of series, it is summation n is equal to 0 to infinity pnx u to the power n. Any doubt Yes, here? sir. No, sir. ये n है, ठीक है, यहाँ पे समझने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है. That is n is equal to 0. Now what I am doing, we are differentiating that above relation partially with respect to u. मतलब अभी ये हमारा रिलेशन है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू u. सो ये दो वेरिएबल है ना इसमें u एंड x, सो डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो आई एम डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू u. ये ट्रिक्स अगर याद रखोगे यहाँ तक कि मुझे जनरेटिंग फंक्शन लेना है एंड आफ्टर दैट आई हैव टू डिफरेंशिएट इट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू यू. अप टू दैट ये ट्रिक्स अगर याद रखोगे तो बाकी तो कैलकुलेशंस है, ठीक है. नाउ द नोटेशन इट इज dg du means del g del u. Do you know the partial differentiation rule? पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब x एंड y दोनों वेरिएबल है, तो अगर पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट लेना होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि द फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ u एंड x and I am differentiating it with respect to u, so x should be treated as constant. Now you think how to differentiate. ये क्या है actually? del del u of this, del g del u मतलब del del u of this function, del del u of 1 by 1 minus 2x u plus u square whole to the power what? Half, है ना? अब इसको डिफरेंशिएट करने से क्या होगा?
पहले तो ये मतलब टू द पावर माइनस हाफ है, अगर ऊपर में ले जाएंगे तो टू द पावर माइनस हाफ, सो माइनस हाफ दिस टर्म टू द पावर माइनस हाफ माइनस वन, मतलब -3/2, दिस टर्म टू द पावर -3/2 हो जाएगा. डू आई नीड टू शो द डिफरेंशिएशन? del u of 1 by root under 1 minus 2xu plus u square. So del u of 1 minus 2xu plus u square to the power minus half. Can I write this? Yes, sir. Now it is something to the power n form na, तो minus half then 1 minus 2xu plus u square to the power minus half minus 1, and according to the chain rule del u of ये 1 minus 2xu plus u square. Do you get it? That is why what I have done, it is according to the chain rule. Any doubt? No, sir. Now minus 1 by 2 and it is -3/2, so I can write 1 minus 2xu plus u square to the power 3/2, and after differentiation with respect to u partially, it will be what? Minus minus 2x plus 2u. पार्शियल डिफरेंशिएशन यही होगा ना, देखो Yes. x कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर -2 कॉमन ले लेते हैं, वो -2 एंड ये जो -2 है कट जाएगा, तो क्या रहेगा? x माइनस यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2xu प्लस यू स्क्वायर टू द पावर 3/2. ओके, तो वही देखो यहाँ पे लिखा गया है, डिफरेंशिएट करने के बाद ये 2 -2 ये कट जाएगा, एंड ये माइनस यहाँ से और एक निकाल लेंगे तो x माइनस यू, तो अल्टीमेटली x माइनस यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2xu प्लस यू स्क्वायर टू द पावर 3/2. एंड इन द राइट हैंड साइड, मतलब ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन, एंड व्हाट अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सीरीज? दैट इज वो सॉल्यूशन में जैसे डिफरेंशिएशन सिखाए थे पावर सीरीज सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जनरल टर्म को क्या हो जाएगा? तो pnx कांस्टेंट है, राइट? u के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली तो pnx कांस्टेंट है, only you have to differentiate u to the power n, so n u to the power n minus 1, that means this after differentiation. And what will be the limit? Summation limit, क्या ये 0 से रहेगा या 1 से रहेगा? बोलो, रिपीट. 1 से 1 से, करेक्ट, बिकॉज फर्स्ट टर्म प्रीवियस सीरीज का क्या था? पी नॉट एक्स, फर्स्ट टर्म पी नॉट एक्स था ना, पी नॉट एक्स, ये सीरीज का सेकेंड टर्म है p1x into u, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन दैट टर्म विल बी 0, so it will be starting from p1x into u, मतलब आफ्टर डिफरेंशिएशन तो ये p1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली n 1 से होगा, जैसे y डैश 1 से होता है. नाउ यहाँ पे अभी एक एडजस्टमेंट होगा, तो ultimately what I have written, that x minus u divided by
1 minus 2xu प्लस, सही लिख रहे हैं ना, हाँ, प्लस यू स्क्वायर टू द पावर 3/2 which is equal to वो समेशन वाला n is equal to 1 to infinity n p n x u to the power n minus 1। अब देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, x minus u, can I write this? It is 1 minus 2xu plus u square into root under of 1 minus 2xu plus u square। नीचे वाला जो है टू द पावर 3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, pn x u to the power n minus 1। now तो x minus u into 1 by 1 minus 2xu plus u square लेफ्ट साइड में, एंड ये जो 1 minus 2xu plus u square है इसको राइट साइड में लेके जा रहा हूं, समेशन n1 to infinity n pn x u to the power n minus 1। now 1 by root under 1 minus 2xu plus u square, it is a generating function na, it is the generating function for Legendre polynomial। is it true? Yes. so I can replace it by that series जो n is equal to 0 to infinity p Yes, sir. n x u to the power n, and right hand side में 1 minus 2xu plus u square n 1 to infinity n pn x u to the power n minus 1। तो अभी क्या करना पड़ेगा, x माइनस यू को ये वाला सीरीज से मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस 2xu प्लस यू स्क्वायर को समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई। अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके क्या करना है तुमको, मतलब एक ही सीरीज में लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक सीरीज, राइट हैंड साइड में भी एक सीरीज, और दोनों सीरीज को एक साइड में लाके ओवरऑल एक सीरीज में लिख सकते हैं। तो वो एडजस्टमेंट अभी करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो x माइनस, आई एम शोइंग हियर, तो x इनटू दैट सीरीज माइनस u इनटू दैट सीरीज कर सकते हैं, राइट। तो मैं अभी लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पे तो ओके, x into this, x into summation n0 to infinity pn x u to the power n, एंड अगर u से मल्टीप्लाई करते हैं ये सीरीज को तो क्या हो जाएगा, ये u to the power n plus 1 माइनस इस, ये कैलकुलेशन चल रहा है अभी, मतलब समेशन का कैलकुलेशन, और कुछ नहीं कर रहा हूं, pn x u to the power n plus 1, ये u से मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड राइट हैंड साइड में 1 इनटू दैट सीरीज, मतलब वो सीरीज सेम टू सेम n 1 to infinity n pn x n pn x u to the power n minus u to the power n minus 1 u to the power n minus 1। ओके, नेक्स्ट ये माइनस 2xu से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये u अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u to the power n,
माइनस 2x e to the power n, राइट। एंड ये u स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा तो u to the power n plus 1। ये ठीक है, यहां तक समझ में आया है? Yes, sir. क्या बाकी सारे देख रहे हो या होप Yes, छोड़ sir. दी? Yes, sir. Yes, Definitely. sir. नोट कर रहे सर। ठीक है, नोट करने का जरूरत नहीं है, ये तो जैम बोर्ड में शेयर करूंगा तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी नोट करके कुछ फायदा नहीं है। आफ्टर दैट देखो, अभी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो टू कंपेयर यू मतलब सभी टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। अब जैसे सीरीज में मैंने दिखाया था पावर सीरीज सॉल्यूशन में कि समेशन का लिमिट सेम करना है एंड जनरल टर्म का डिग्री भी सेम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल टर्म का डिग्री सेम करने की कोशिश करते हैं। तो जनरल टर्म का डिग्री सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, u to the power n में लाना चाहता हूं मैं। तो फॉर द सेकेंड you have to take what, n plus 1 is equal to s, okay, for this। next u to the power n minus 1 for this, ये क्या करना इसमें, n minus 1 is equal to s, ये तो ऑलरेडी u to the power n है। एंड लास्ट इसके लिए n plus 1 is equal to s। तो बाकी जो है ना, बाकी तो जिसमें u to the power n है उसमें n is equal to s ले ले रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली x into after changing to s 0 to infinity p s x u to the power s माइनस लिमिट क्या होगा बोलो, n 0 मतलब s 1 से p s minus 1 ना, p s minus 1 x u to the power s which is equal to summation। इसमें अगर n is equal to 1 पुट करेंगे तो s कहां से शुरू होगा, 0 से, n हो जाएगा s plus 1, s plus 1 into p s plus 1 x u to the power s Yes. माइनस 2x समेशन, इसमें s जस्ट n इज इक्वल टू s ले लो क्योंकि इसमें तो u to the power n फॉर्म है। तो s इज इक्वल टू 1 to infinity s p s x u to the power s and for the last n plus 1 s। तो s कहां से शुरू होगा, 2 से, s 2 to infinity and n will be s minus 1, s minus 1 p s minus 1 x u to the power s। अब देखो सभी टर्म u to the power s में आ गया। हाउएवर जो इंडेक्स लोअर इंडेक्स है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं पावर सीरीज सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, देन नो नीड टू make the same lower index। तो क्या करेंगे ultimately from here we will compare the general degree term। तो मतलब u to the power s का कोएफिशिएंट हम लोग लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वेट करेंगे, ठीक है। डू यू हैव क्लास नाउ?
Just 2 minutes. Yes, sir. We have Yes, sir. AEC. AEC class. Okay. Equating coefficient of u to the power s. तो देखो मैं और नहीं लिख रहा हूं अभी यहाँ पे फॉर द फर्स्ट सीरीज u to the power s का कोएफिशिएंट क्या है? टेल मी. x into psx. Okay. For the first series coefficient x into psx. Then second series में u to the power s का कोएफिशिएंट p minus ps minus 1. तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x into psx minus ps minus 1 x and राइट साइड में हो जाएगा s plus 1 ps plus 1 x and minus 2x s ps x and लास्ट सीरीज के लिए s minus 1 sorry s minus 1 ps minus 1 x. तो ये इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, करने से जो रिक्वायर्ड प्रूफ है बोनेट रिकर्सन है वो मिल जाएगा. तो यू डू इट. ओके, करके देखो कि बोनेट रिकर्सन आ रहा है कि नहीं. फाइनली एस के टर्म पे आएगा एंड लास्टली एस की जगह पे एन पुट कर दो, क्योंकि इसमें एस रखो या एन रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. फाइन. मैं तुम लोग क्लास लीव कर सकते हो, मैं वहां पे ये कंप्लीट करके दिखा दे रहा हूँ, देख लेना. सर जैमबोर्ड पे कर रहे हैं सर वो कंप्लीट. जैमबोर्ड पे करके रख रहा हूँ. यस सर. देख लेना. मैं जैमबोर्ड लिंक तो तुम्हारे पास होगा ना अभी.